So children, after a long journey of 4 to 6 months, we have reached on the last session, that is session 8, the final countdown. It has practically less things to be understood as new things. ये पुराने 7 sessions का revision इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा. Okay. After this, children, we'll be going to a small text of around 10 to 12 pages, hardly one session you can say or 2 sessions, for financial literacy for entrepreneurs. Thereafter, we'll be having a content where SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, has lessons on financial planning for young investors. Got it clear? And then I'll hold a certification test for everybody, and then people will be getting their certificates to be used for further upgrading their knowledge. और जब भी कल को आप एडमिशन वगैरह के लिए जाएंगे तो these things count a lot, children. चलिए, तो let's start with session 8, the final countdown. So everybody understood कि borrowing जो भी आपकी होनी चाहिए, it should be need based and not want based. जरूरत हो तो borrow करिए, else borrow करने की जरूरत नहीं है. And the cost that we pay extra with borrowing is called as what? Interest. And thereafter everybody knows how we calculate it. EMI. Credit card advantages क्या है and precautions क्या होते हैं, और बैंक लोन का जनरल सो कॉल्ड कंटेंट क्या होता है, कितने तरह के बैंक लोन होते हैं, और ये 70-20-10 रूल आपको मेरे को भी बताना बाकी है. सो आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे चिल्ड्रन, ये आपने स्टार्टिंग में भी लेक्चर किया था अपना FIQ जानने के लिए, और आज आप फिर करने वाले हैं. तो लेट्स सी कि आपने अभी तक के 25-26 सेशंस में क्या सीखा. सो ट्रू और फॉल्स सबको नजर आ रहा होगा, मिल गया. तो स्मॉल एक्सरसाइज, एवरीबडी हैज द वर्कबुक विद देम. यू आर सपोज्ड टू डू ऑल दीज 10 ट्रू एंड फॉल्स चिल्ड्रन. लेट्स सी अब आपका FIQ क्या आता है. जितने आंसर्स करेक्ट होंगे उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे. गॉट इट क्लियर? अगर सब सही हो गए तो 10 on 10 इट इज 1, मतलब 100% FIQ हो गया आपका. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन. So the first one, children, it says, if a person borrows 10,000 rupees at the rate of 15% for 1 year, EMI works out to be so-called 958. Let's see. So 10,000 ka 15% is 1,500 divided by 12. Yes, the answer is correct. It is 10,000 plus 1,500 makes up 11,500 divided by 12. So 958.33 aega. The answer is true. One can reap tax benefit from all type of investments. No, not at all. There are specific tax saving investments. आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करके टैक्स सेव नहीं कर सकते. 10,000 रुपीज अगर कोई भी इंसान 8 years के लिए इन्वेस्ट करेगा एट 8%, ये कंपाउंड होगा और डबल हो जाएगा सो कॉल्ड 8 साल के अंदर. रूल ऑफ 72 याद है चिल्ड्रन? 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. आंसर इज व्हाट? 9 years. 9 years में डबल होगा, 8 years में डबल नहीं होगा. Answer is false. Person wants to buy a cell phone worth 15,000. It would be better for him to pay for it over 1 year using credit card which charges 3% rather than taking a personal loan at the rate of 12%. So चलन यहाँ पे पर्सन ने एक सेल फोन खरीदना चाहता है, वो 15,000 का. 3% वो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस दे. क्रेडिट कार्ड के चार्जेस पर मंथ होते हैं, या पर्सनल लोन ले ले 12% का. कौन सा बेटर होगा? द आंसर इज 12%. तो आंसर इज ट्रू. EMI stands for equated monthly installment, not investment. It is possible for us to have a share in the profits of many big companies in India. The answer is true, by way of what is named as a dividend. One can open a bank account even if one does not have a ration card. It's true, children. One can keep one saving in post office. True. Person below 18 years of loan age can apply for a loan. False. When you save money, it grows. Again, it is false. No. When you invest only, then it will grow. तो आपके जितने आंसर्स सही हैं चिल्ड्रन, ट्रू मैंने बताया तो आपका भी ट्रू होना चाहिए, मैंने फॉल्स बताया तो आपका भी फॉल्स होना चाहिए. ये जितने सही हैं इसको डिवाइड कर लीजिए. अगर सब सही है तो FIQ विल बी 1. Got it? चलिए, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी. मेरे को लगा कि लोन बाद में पूछ रहा है वो, सॉरी.
It is not better to pay with credit card, rather it is better to take a personal loan. चलिए, कोई क्वेरी किसी की? नो क्वेरीज? चलो, क्वेस्ट फॉर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर से कहां से निकल के आ गया? ये हमारे सनी अंकल हैं, 15 साल इनकी उम्र है, कंप्यूटर गेम्स क्रिएट करना चाहते हैं और इनका ड्रीम है कि ये एक सो कॉल्ड गेमिंग कंपनी खोलें। और करंट कंप्यूटर इनका बहुत स्लो है, काफी दोस्तों के प्यारे भी हैं ये, क्योंकि ये फ्री में उनका कंप्यूटर भी रिपेयर कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ ड्रीम मशीन इज 35,000 रुपीज एंड डेडलाइन इज हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? 9 मंथ्स। तो इसका गोल स्मार्ट है कि नहीं है, लेट्स सी। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट चिल्ड्रन? एस स्पेसिफिक, वेरी गुड, वेरी गुड। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट चिल्ड्रन? Measurable. Measurable, correct. A stands for children? Achievable. Achievable. Very good. R stands for what? Realistic. Realistic. T stands for what, children? Time bound. Time bound. So within 9 months, he is supposed to buy a new computer. So it is time bound. Specific what he wants to buy, the answer is a computer. It is achievable, definitely true. 35,000 रुपए 9 महीने में कहां से अरेंज होगा? हर महीने लगभग 4,000 अरेंज करेगा तो 36 हो ही जाएगा। तो yes, it is achievable, and because value is known to him, so it is measurable. So it is a smart goal or it is not a smart goal? It is a smart goal. समझ गए? Sunny's income and expenditure is given to us. 250 रुपए पर वीक इसको इसके पेरेंट्स देंगे, तो 9 मंथ्स में कितनी वीक्स होंगी? 12 मंथ्स में 52 वीक्स होती हैं, तो 9 मंथ्स विल हैव 39 वीक्स। 39 वीक्स में 250 रुपी के रेट से कितना पॉकेट मनी इसको मिलेगा? द आंसर इज 9750। लास्ट मंथ ही स्पेंट ऑन द फॉलोइंग। 400 रुपए कैंटीन में, 150 रुपए इसको मूवी में खर्च किया, 150 रुपए कंप्यूटर गेम, 150 रुपए रेस्टोरेंट, 600 रुपए ऑटो बिल, मोबाइल का 750 रुपए और स्टेशनरी 50। ये सब जोड़ के बताइए व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर? 4, 5, 50, 6, 7, 8, 850 and 6, 1450. 1450 and 750 is 2200। 2250 इसने खर्च किया, और इसको एक हफ्ते में कितने पैसे मिलते हैं? 250। तो लगभग इसको सो कॉल्ड 4 हफ्ते में कितने पैसे मिले होंगे? द आंसर इज 1000। लेट्स रिकैलकुलेट इट्स एक्सपेंस। गड़बड़ तो नहीं है? 400 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, कितनी बार 150 है बच्चों? एक मूवी का है, एक कंप्यूटर गेम का है, एक रेस्टोरेंट का है, ऑटो का 600 रुपए, 750 रुपए और 50 रुपए माइनस, ठीक, यस 2250। कमाइए 1000। इसकी मम्मी ने 500 रुपए दे दिए पापा को बिना बताए। ऐसी ही मम्मी लोग बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद करती हैं। चलिए, हम इनकी मम्मी का कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों 1000 रुपए तो इसको मिला होगा, 500 रुपए इसकी मम्मी ने दे दिया, टोटल इसके पास कितने पैसे आ गए? 1500। और इसका खर्चा कितने का है? 2250। सो ही इज हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 750 रुपए की डेफिशिएंसी। 2250 का खर्चा और 1500 रुपए की कमाई, तो हिज डेफिशिएंसी इज हाउ मच? His deficiency is how much? 750। मोबाइल बिल इसके पापा ने पे कर दिया था। ओके, कितने का था मोबाइल बिल इसका? 750 रुपए का। चलिए, तो इसका नेट अमाउंट जो बचा कितना था? 0। कैसे सर? भाई 1000 रुपए इसको पॉकेट मनी मिल गई, 750 रुपए इसके पापा ने मोबाइल बिल पे कर दिया, मम्मी ने चोरी चोरी चुपके चुपके पापा से बिना बताए पैसे दे दिए।
तो टोटल इसके पास कितने पैसे आ गए 2250 और खर्चा भी कितने का है 2250। तो नेट सरप्लस डेफिशिएंसी वर्क्स आउट टू बी 0। इज दैट क्लियर? अब सनी के पास कितने मंथ्स बचे हैं 8 मंथ्स बचे हैं। तो 12 महीने में अगर 52 वीक्स होते हैं तो 8 मंथ्स में कितने वीक होंगे? लेट्स सी। द आंसर इज रफली 34.67 और इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई 8667 रुपीज इसके पास बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये कंप्यूटर खरीद पाएगा 35,000 का। तो बच्चों क्या सनी का जो गोल था वो अचीवेबल होगा? इन हरकतों से पता लग रहा है दैट हिज गोल इज नॉट अचीवेबल। व्हाई? क्योंकि इसका जो नीड वांट एनालिसिस है ये पूरा गड़बड़ाया है। कैंटीन में कितना पैसा इसने खर्च किया बताएंगे लोग मेरे को? कैंटीन में 400, वेरी गुड। ऑटो पे कितना खर्च किया 600, मूवी पे 150। शाहरुख खान की मूवी देखने नहीं गया था लगता है। देयर आफ्टर रेस्टोरेंट में चलन 150, कंप्यूटर गेम 150, स्टेशनरी 50। टोटल कर लीजिए इसको 6 4 10 1000 1300 1400 1500 रुपए। मोबाइल पे कितना खर्च किया 750। क्लोथिंग पे कितना खर्च किया नथिंग 6,000. वो तो उसके पेरेंट्स ने खर्च किया था ना। पेरेंट्स हैड स्पेंड 6000। चलिए तो क्लोजिंग का भी लिख लेते हैं। क्लोथिंग का कितना था बताइए बच्चों 6000। तो टोटल इसका खर्चा है बच्चों 8250। अब आपको मेरे को बताना है कि नीड क्या है वांट क्या है। कैंटीन नीड है कि वांट है चिल्ड्रन? बिना कैंटीन के रह सकते हैं जिंदा? तो इट्स अ वांट। इट्स अ वांट। नीड तो अटमोस्ट नेसेसरी थिंग विदाउट विच अ पर्सन कांट लिव। ऑटो पे जाना ही वांट है, मूवी भी वांट है, रेस्टोरेंट भी वांट है, ये भी वांट है। बट कंप्यूटर गेम क्या है चिल्ड्रन? ओ सॉरी कंप्यूटर गेम कह रहा हूं, स्टेशनरी क्या है नीड। वेरी गुड। Thereafter mobile phone is a want and clothing is a need। तो अल्टीमेटली इसका सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का एक ऐसा खर्चा है जो सही है, बाकी इसके सारे के सारे खर्चे सिर्फ और सिर्फ उड़ान डकान वाले हैं विच ही शुड बी अवॉइडिंग। समझ में आ गई बात? ऑटो साइकिल से जाए, ऑटो से जाने की क्या जरूरत है? समझ में आ गया? तो जरा लिख लीजिए इसको। और आपका भी ऐसा कुछ नीड एनालिसिस रहा होगा जीवन में और अभी भी होता होगा, तो इस बात पे जरूर विचार करिएगा व्हाट इज नीडेड। कि भाई क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी जिनके लिए वांट है, जिनको कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, टाइम पास कर रहे हैं, आफ्टर 10-20 ईयर्स दे विल रिग्रेट कि भाई हमने अपने जीवन में पढ़ाई पे अगर ध्यान दिया होता तो आज ये कंडीशन ना होती। लिख लीजिए सब लोग। सबने लिख लिया नीड और वांट क्या है? तो अपना भी नीड और वांट एनालिसिस करते रहिए। जो चीज नीडेड है ओनली बाय देम, वांट को इग्नोर करिए। गॉट इट? हाँ, जब ठीक ठाक अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे तो सो कॉल्ड खर्च कर लीजिएगा। सो बच्चों पॉकेट मनी इसको कितनी मिल रही थी 250 पर वीक। और कितने वीक्स का एनालिसिस किया गया था 39 वीक्स का। तो इनटू 39 कर देंगे तो पॉकेट मनी से 8750 या 9750 कितना आ रहा था 9750 आ रहा था सॉरी। तो 9750 कर लीजिए। मोबाइल बिल कितना था बच्चों 750 पर मंथ, इजंट इट? तो 9 मंथ्स में अगर ये मोबाइल फोन पे थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर ले तो 6750 यहां से, 6000 यहां से। अब सर कपड़े ना पहने क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नए कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। 22,500 रुपए तो इसको यहां से मिल जाएंगे। 35,000 रुपी टोटल चाहिए। तो स्टिल ही नीड्स हाउ मच 12,500। तो सनी रियलाइजेस दैट हिज पेरेंट्स हैव स्पेंट 5,000 रुपीज ऑन हिज लास्ट बर्थडे। तो चलो इस बार बोलेगा कि बर्थडे पे पापा पैसा मत खर्च करो। व्हाट इट क्लियर? और क्यों? क्योंकि इसके प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, पढ़ना लिखना भी होगा। तो नेट डेफिसिट जो आएगा वो 7,500 रुपए का आएगा। समझ में आ गई बात?
चिल्ड्रन समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड? चलें आगे। समझ में आ गया? कोई क्वेरी है किसी की भाई? So once he buys a computer, he would need not the old computer. His friend has already offered 5725 for the old computer. चलिए 7,500 रुपए की डेफिशिएंसी थी, 5725 में पुराना कंप्यूटर बिक जाएगा। So 7500 minus 5725, 1775 रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं जुगाड़ पानी फाइनेंशियल प्लानिंग। छोटी एज में कंप्यूटर से स्टार्ट होता है, बड़ी एज में घर और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। तो नेट इसको 1775 रुपए का जुगाड़मेंट कहीं से करना पड़ेगा और इसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए। सो अभी तक समझ गए मनी जो बचाया, सनी की कमाई और टोटल मनी कितना और कितना इसको चाहिए। तो व्हाट ही शुड डू? शुड ही गिव अप हिज गोल? द आंसर इज नो। Should he find ways to achieve it? Yes. क्या ways अचीव कर सकता है? He should take advance from friends for developing a new game. ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या करती हैं? कार लॉन्च करती हैं और कहती है 3 महीने बाद डिलीवरी होगी, बुकिंग करा दीजिए। समझ में क्या? और 21,000, 51,000, 11,000 जो भी अमाउंट हो, बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं। तो कितना पैसा उनको कस्टमर से एडवांस मिल जाता है जो कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो जाएगा। तो 1775 रुपए अगर इसको चाहिए, मान लेते हैं इसके 10 फ्रेंड्स होंगे, रफली सबसे अगर 200 रुपए ले चल रहे हैं तो 2,000 रुपए के आसपास आ जाएगा इसके पास। और ये अपने फ्रेंड से बोले कि मैं गेम बनाऊंगा, सबसे पहले मैं तुम्ही लोग को गेम दूंगा, तो इसके फ्रेंड्स का भी एडवांटेज, इसका भी एडवांटेज। गॉट इट? Understood this? चलिए, what do you think is the solution to his problem? Can he borrow money from someone? Yes. क्या बैंक इस सनी जैसे इंसान को जिसकी उम्र 15 साल है लोन देगा बच्चों? आंसर एब्सोल्युटली नॉट। नो सर। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। बैंक इसको लोन नहीं देगा। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? Any doubts? Who can lend money to Sunny? Only children, friends, parents, and relatives. ठीक। How will Sunny get a loan? बस यही रेफर कर लीजिए। How will Sunny repay the loan? Computer games earnings will make him earn money, and thereafter ये उसी से पेमेंट कर सकता है। From where will Sunny get the best deal? कौन सी बेस्ट डील? कंप्यूटर खरीदने की, ऑब्वियस सी बात है। ऑनलाइन ही खरीद ले तो मेरे को लग रहा है अच्छा है। और सनी पे कैसे करेगा? द आंसर इज EMI में पे कर देगा। गॉट इट? एनी क्वेरी चिल्ड्रन? प्लान फॉर सनीज रीपेमेंट। यहाँ पे लिखा है सनीज फादर इंसिस्ट सनी टू पे सम मनी एवरी मंथ, मतलब सनी ने अपने फादर से लोन लिया है। नो हाउ मच शुड सनी पे हिज फादर ईच मंथ? What happens if Sunny pays a monthly installment of 1237? तो बच्चों 1237 के अगर 12 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा, 1237 into 12, तो लगभग 14,844 रुपीस का पेमेंट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ये 13,250 आया कहां से? हमने अपना कैलकुलेशन किया है, द कंटेंट प्रोवाइडर से भी, जिन्होंने पॉकेट मनी प्रोग्राम की बुक बनाई, इन्होंने अपना कैलकुलेशन किया होगा। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग एज पर सिनेरियो। तो हमारे हिसाब से भाई कपड़े तो नेसेसिटी थे, हो सकता है इन्होंने वांट मान लिया होगा। हमारे हिसाब से मोबाइल फोन वांट था, हो सकता है इन्होंने नेसेसिटी मान लिया होगा।
तो इनकी हमारी वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एज आई सेड इट इज काउंटडाउन, फाइनल काउंटडाउन की रिवीजन है, तो यहाँ पे आप कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे. लास्ट आपने पिछले सेशन 7 वाले कंटेंट में बोरोइंग में ईएमआई कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा था, तो यहाँ रिवाइज कराया जा रहा है. आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो नो नीड टू से दिस. सो करेक्ट ईएमआई सनी को कितनी देनी है याद करिए बच्चों. दो तरह के मैंने आपको पेमेंट मेथड्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो. वन इज कॉल्ड एज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा क्या था बच्चों? याद करिए, याद करिए. रिड्यूसिंग बैलेंस. यस, जो लोग सो रहे हैं वो तो नहीं बता पाएंगे, जो जगह उन्होंने बता दिया. रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड. विच इज मोर कन्वीनियंट चिल्ड्रन, रिड्यूसिंग बैलेंस या फ्लैट? यस, रिड्यूसिंग बैलेंस. गॉट इट क्लियर. और आधे आधे का फर्क होता है, आपको याद होगा हमारा वो एचडीएफसी और एसबीआई वाला एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो. गॉट इट. सो सनी टेक्स अ लीप अहेड कि इसको कम से कम पेमेंट करना पड़े. अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने एक लेक्चर में आपको यही बताया था, होम लोन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए और पे उसको जल्दी से कर देना चाहिए. तो अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं एसबीआई से होम लोन लेने की, एक 10 ईयर का लोन और एक 20 ईयर का लोन, तो आई सजेस्ट कि 20 ईयर का लोन दे लीजिए, क्योंकि इस पे जो ईएमआई होगी चिल्ड्रन ये बहुत लो होगी, और 10 ईयर वाले पे जो ईएमआई होगी ये बहुत हाई होगी. लो ईएमआई की वजह से आपके पास मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उस पैसे को अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जब आप, तो सो कॉल्ड आप अपना लोन कम समय में अच्छी अर्निंग से पे कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए एक लॉजिक नजर आ रहा है. इट सेज Sunny is very happy that he have to pay less, and his father suggests something more fantastic. Sunny's father suggests instead of paying EMI of 1177 for 12 months, Sunny can pay an installment of how much children? 624 for a period of 2 years. सर फर्क क्या पड़ेगा? जरा मल्टीप्लाई करिए 1177 को 12 से एंड 624 को 24 से. लेट्स सी 624 इंटू 24, ये लगभग 15,000 रुपए आएगा चिल्ड्रन. 14,976 एंड 1177 इंटू 12, ये लगभग 14,000 रुपए आएगा. कितने का फर्क आ रहा है? लगभग 1,000 का. गॉट इट क्लियर. 1,000 का भी नहीं आना चाहिए. 624 इंटू 24, 14,976 हो रही है ये वैल्यू एक्चुअल में, और ये 1177 इंटू 12 is 14,124. So 14,976. 1,000 का भी डिफरेंस नहीं है बच्चों, 852 रुपए का डिफरेंस है. तो ये वाला सिस्टम बेटर है, क्योंकि होगा क्या, ध्यान दीजिएगा बात पे, बहुत मजेदार एग्जांपल है चिल्ड्रन. 1177 आप 12 महीने तक मत पे करिए, इंस्टेड कितना पे करिए? 624. तो हर महीने आपके पास कितना सरप्लस जनरेट होगा चिल्ड्रन? 1177 माइनस 624, 553 का सरप्लस जनरेट होगा. 553 का सरप्लस जनरेट होगा. बहुत दिमाग लगाने वाली बात है. आई रिपीट अगेन, डोंट पे दिस मच, रादर पे हाउ मच? 624 रुपीज. जब आप हर महीने 624 रुपए पे करेंगे, तो हर महीने आपके पास कितने पैसे बचेंगे चिल्ड्रन? 553. Understand this maths. After 12 months क्या होगा सर? 624 रुपए 12 महीने जब आपने पे किए, तो आपने 7488 पे कर दिया. कितना पे कर दिया? 7488. और ये 553 रुपीज का सरप्लस 12 महीने तक एट द रेट ऑफ, अगेन चिल्ड्रन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक्चुअल लाइफ में वर्केबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मान लेते हैं 553 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. मान लीजिए 12% का रिटर्न नहीं है, 9% का ही रिटर्न है, तो लगभग 7,000 रुपए आपके पास जो सरप्लस था, अगर आप उससे ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 6,966 रुपए का सरप्लस आ जाएगा. ये भी आप अपने लोन में पे बैक कर दीजिए. आई रिपीट चिल्ड्रन, इसको भी अपने लोन में पे बैक कर दीजिए. तो 7488 प्लस 6966, टोटल 14,454 रुपीज आपका पूरा पेमेंट हो गया.
आई रिपीट, आपका पूरा पेमेंट हो गया। आई रिपीट चिल्ड्रन, लगभग आपका पूरा पेमेंट हो गया। या आपको देना था 14,976, 14,454 तो ऐसे पे हो गया। एक अगले महीने 522 और पे कर दीजिएगा। तो एडवांटेज क्या मिला, आपने लोन 12 महीने का ना लेके 24 महीने का लिया, जिससे आपकी ईएमआई की वैल्यू रिड्यूस हो गई। उस पैसे से आपने 12 महीने 7,488 रुपीज का पेमेंट कर दिया। जो 553 हर महीने सरप्लस बच रहा था, उसको मान लेते हैं एट 9% कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जो हमको एक साल के बाद कितना दे देगा, 6966। ये भी हम पे कर देंगे जिससे लोन लिया था। नेट हमारा पेमेंट और कितने का होना है, सिर्फ 522 रुपए का। तो अगले 11 महीने आप आराम से सोइए। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको हाउस लोन में बता रहा था कि लीजिए 20 साल का लोन, क्योंकि ईएमआई कम आएगी, जो सरप्लस आपके पास बचेगा री इन्वेस्टेड, उस सरप्लस री इन्वेस्टमेंट से इतने रिटर्न्स आ जाएंगे कि आप अपना लोन जल्दी पे कर पाएंगे। तो दिस इज द सो कॉल्ड सिंपल ट्रिक। एकदम समझ गए बात को, समझ गए बात को? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? चलो, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क। यस सर। तो सनी के पिताजी से बताते हैं कि भाई आई डिसाइडेड टू सेव 1,000 एवरी मंथ जब मेरी उम्र कितनी थी, 35 साल, और ठीक ठाक म्यूचुअल फंड 10-12% देता है, 15% भी देता है, 20 भी देता है, 2% भी देता है। डू यू नो हाउ मच मनी इट हैज ग्रोन टू जब मेरी उम्र 45 साल हुई? 2,30,039 रुपीज। सनी को बहुत फैसिनेटिंग लगा, रही ये तो बहुत बढ़िया चीज है, पापा ने तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया। तो सनी के पिताजी ने बताया कि अगर मैं 1,000 रुपए 10 साल इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा पैसा 2,30,000 होता है। तुम 500 रुपए इन्वेस्ट करो पहले 30 साल, और फिर 500 रुपए इन्वेस्ट करो अगले 20 साल हर महीने। अगर 12% ठीक ठाक म्यूचुअल फंड दे गया तो तुम्हें भी सो कॉल्ड कितने रिटर्न्स मिलेंगे, 20,98,000। तो इट इज नॉट द अमाउंट और द रेट चिल्ड्रन, the most important period in investment yielding high returns is what? Time period. Sorry, most important element, most important period नहीं, most important element। जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो सनी को समझ में आ गया और कह रहा है हम भी सर की तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाएंगे। एसआईपी तो पता है आपको क्या होती है, गॉट इट क्लियर? तो एसआईपी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स यील्ड करके देती है चिल्ड्रन। तो सनी की अर्निंग होने लग गई कंप्यूटर बिजनेस से 750, 125 रुपए ये अपनी पॉकेट मनी से सेव कर लेता है। सेलफोन बिल थोड़ा सा कम हो गया, 250 रुपए, और 100 रुपए क्लोथिंग पे कम हो गया। तो एवरी मंथ ही इज एबल टू सेव हाउ मच चिल्ड्रन? 1,225। आप लोग भी स्टूडेंट हैं और अभी कम से कम अगले 5 साल तो आपके सिर पे कोई बोझ नहीं है। 5 साल में होते हैं 60 मंथ्स। तो अगर 1,225 रुपए आप 60 महीने तक ही बस इन्वेस्ट करें चिल्ड्रन, कितने महीने तक? 60 मंथ तक, और ठीक ठाक 12% के रिटर्न अगर मिल जाए तो आफ्टर ग्रेजुएशन खत्म होने पे आपकी जेब में कितना पैसा होगा चिल्ड्रन? 1,00,000 रुपए। 1,10,100,000 10,000 लाख, 1,00,000 रुपए आपके पास होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना आपने पर मंथ बचाया। हार्डली यू कैन से 40 रुपीज पर डे चिल्ड्रन। तो 40 रुपए पर डे बचाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। So increasing your power and your power to save and power to borrow. What is the way to increase your power to save and power to borrow? What enables a person to earn? What enables a person to earn is the zeal to become wealthy. Got it? Write down the 3 skill sets that you have which will enable you to earn money. अब ये तो भाई हर बच्चे का अपना अपना होगा। आप कहाँ से पैसा कमा सकते हैं? आप कहेंगे सर अभी इतनी छोटी उम्र में कैसे पैसा कमाएंगे? ओयो का जो सीईओ था चिल्ड्रन, जब उसने ओयो स्टार्ट किया था, द एज वाज 23 ईयर्स। तो 23 ईयर्स में अगर कोई हजारों करोड़ की प्लानिंग कर सकता है, ऐसा थोड़ा कि आप 16-17 साल की उम्र में लाखों की प्लानिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट मेजोरिटी लोग तो सोने की प्लानिंग करते हैं, सोते रहते हैं क्लास के अंदर, वो सोने की प्लानिंग चल रही है। हमको भी सोने की प्लानिंग करनी चाहिए, बट हमारे सोने की इंग्लिश स्पेलिंग स्लीप की जगह क्या होनी चाहिए? गोल्ड होनी चाहिए। ओके, तो ये 3 स्किल सेट्स लिखिएगा।
जो आपको लगता हो कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, यू आर अ गुड आर्टिस्ट, तो भैया आप अपनी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू आर अ गुड राइटर, चैट जीपीटी का सहारा लेके अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर एजेंसीज आपको हायर कर लेंगी। Got it clear? तो instead of sleeping, people can do many things. You can write good scripts. आपका स्कूल ले सकता है प्ले कंडक्ट कराने के लिए, बाद में दूसरे लोग उन स्क्रिप्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, आप उनका कॉपीराइट करा सकते हैं। स्टोरी राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, अगर आपको ऐसे राइटिंग अच्छा लगता है, आप ऐसे की अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ है ये। सो नेट बेनिफिट समझ में आ गया। कुछ साइट्स हैं, इनको रेगुलरली एक्सेस करिए बच्चों। ब्लूमबर्ग टीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, देन मनी कंट्रोल, myrisk.com, बहुत वेबसाइट्स हैं। सेबी, वैल्यू रिसर्च, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स इंडिया.com, मेनी वेबसाइट्स आर देयर। बहुत मैटर, बहुत डेटा आपको मिलेगा। सेबी की वेबसाइट आप देख सकते हैं, आरबीआई इज देयर। तो ये सारी कहानी आपको लगभग समझ में आ गई। आई हैव फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन फॉर फैमिलीज ऑल्सो चिल्ड्रन, बट अगेन अभी मैं इस पे फोकस नहीं हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर, एज आई सेड चिल्ड्रन, we'll be doing session for so called entrepreneurs. Got it clear? फिर entrepreneur वाला एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। देन सेबी के हमारे कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस हैं। जो कंटेंट आपने पढ़ा, मेजॉरिटी कंटेंट आपको वही मिलेगा, थोड़ी सी चीजें नई मिलेंगी इसमें आपको। Got it? सो होल क्रिसमस मंथ दिसंबर में हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। देन जनवरी आई विल बी होल्डिंग सो कॉल्ड अ सर्टिफिकेशन टेस्ट। समझ में आ गया? क्योंकि 12th क्लास में टाइम नहीं होता, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई 11th क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा अपनी को करिकुलर, को एकेडमिक एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लें, ताकि 12th क्लास में एकदम इंक्लाइंड टू बोर्ड्स पढ़ाई हो जाए। तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगेगा तो लाइक के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा।